ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ, ਬਾਕੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਵਿਆਹ ਜੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਜੀ ਜੀ ਨਵਰਾਤਰੇ 'ਚ 9 ਦਿਨ ਜੀ। ਅੰਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ, ਪੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾ ਜੀ। ਅੰਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਹੁੰਦੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, 2021-22 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ 22 'ਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ 2025 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੰਗਲ ਵਧਾਈ। ਇਹ 9 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੱਡੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਥੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਹਾਂ, ਜਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, 4 ਰਾਸ਼ੀ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਮਾਇਆ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰटिफिक है। साढ़े देखो सारी चीज़ें बिल्कुल साइंस है। और इसी में आज के दिन संबत जो है 2081 सी 2082 हो गया ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 2082 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। 25 ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। पूर्व ये तो ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5100 ਕੁਛ ਵਰਸ਼ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। लेकिन विक्रमा आदित्य जी साढ़े राजा जेड़े हैं, वो राजा जी से ही विक्रम संबत नाम दिया गया ऋषियों द्वारा, क्योंकि उनकी ख्याति इतनी थी, तेज प्रताप इतना था। जब से वो चले हैं तब से आज तक 2082 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब जे असी उदा कहिए तो 57-58 साल असी अगे हैं अंग्रेजों तो, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਬਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਣਾਏ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਣਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਸਤਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ? ਹਾਂ, ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢਣ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅਗਰ
ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹਾਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਸਟੇਟਸ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਬਣੋ ਸਨਾਤਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਦਾਇਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ बढ़ाई चाहता है कि भाई मैं अगे बढ़ा, लोग मैनू जानन, लेकिन सनातन दे लिए सानू इदा नहीं करना है। हम मिल करके जो है सनातन का प्रचार करें, प्रसार करें। जो था है रहेगा, उसके साथ चलें। जो नहीं है, जो आया है चला जाएगा, उसके साथ रह कर क्या फ़ायदा। इसलिए सारे मिलकर, ये तो निकल गया साल, अगले साल के लिए मैं ही ये प्रण ले चुका हूँ कि मेरा परिवार झंडा दिल खोल कर उठाए। आज किसका परिवार झंडा उठा करके सड़क में आता है सनातन के लिए? कोई नहीं आता। फोटो खिंचान सारे ने आ जाना, चाहे वो कोई भी है। सारी जिन्नी भी संस्थावां बनियां हुशियारपुर च, जिद्दां हुशियारपुर च छड्डो जिथे भी बनियां, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ दिन एक शोभा यात्रा कढ़नी चाहिए। पर लेकिन शोभा यात्रा का स्वरूप क्या है? भागवत जी च भी 11वें स्कंद च दस्सिया ਇਹਦੇ च, लेकिन हमने वो चीज़ बतानी नहीं कभी, ना प्रसार करना ना प्रचार करना। अगर ये चीज़ हम करते हैं, हमारा सनातन बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और सनातन को जानने वाले जो हैं ना, हमारे को छोड़ो, जो विदेशी भी हैं, जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं, वो भी सैल्यूट करते हैं हमें जी। लेकिन हमारा हिंदू ही हमें नीचे दिखाने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। पर किसी की गलती नहीं है। गलती पता क्या है? हम पूरी बात पहुंचाते नहीं लोगों तक, हमारी अधूरी जानकारी होती है। हाँ, हमें भी जानकारी पूरी जानकारी लेने के बाद ही, अब मेरे को आज सुबह ही सवाल मेरे ही लड़कों ने कर दिया कि 2082 ही क्यों? 2025 तक चल रहा है, यही क्यों? आप कह रहे हैं षष्ठी संवत्सरा नाम मध्य सिद्धार्थी नाम संवत्सर, ये आप कह रहे हैं 60 संवत्सर हैं। 60 संवत्सर हैं तो फिर 2082 क्यों? तो इसकी व्याख्या जब उनको पूरी पता लगी तो वो सनातन धर्म के प्रति न्यौछावर होने को भी तैयार हो गए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मतलब सनातन के लिए हमने तो कभी नहीं सिखाया कि अपने शरीर पर बम लगा लो और जाओ और मारो भी और मर भी जाओ। हम कहते हैं कि ऐसे डूबो इस जानकारी में कि आनंद लो आप भी और दूसरे को भी आनंद लो। तो मतलब हमारा धर्म बड़ा अच्छा है, धर्म सारे अच्छे हैं जी। ठीक है जी, कोई धर्म किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं बताता, किसी का गलत करो जी। लेकिन हमारा जो सनातन है लगातार साइंस है थी रहेगा, ये डेफिनेट है। तो मतलब कि आप, तो मैं बस एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सारे मिलकर नव वर्ष वाले दिन एक झंडा यात्रा करें जिसमें सब लोगों को पता लगे। पर वो झंडा यात्रा किसी ट्राली पे या बाइक पे ना हो जी। ठीक है जी। आजकल शोभा यात्रा में जाते हैं लोग, चलो आज का एक ट्रेंड है, लोग धूप में चल नहीं सकते, पर जो धूप में नहीं चल सकते तो वो सनातन के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो जगह जगह पर लोग उनका स्वागत करते हैं। पर मैंने जहाँ तक देखा, स्वागत में क्या होता है कि शोभा यात्रा में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बड़ा सा लिफाफा मिलेगा। मैंने खुद देखा है, मैंने कहा जी बड़ा सा लिफाफा क्यों? ओ जी जो सामान मिलेगा उसको इकट्ठा करेंगे। मतलब हम ऐसे फेंक रहे हैं, बिस्किट फेंक रहे हैं, टॉफियाँ ऐसे फेंक रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप? टॉफियाँ फेंकने से अच्छा आप साथ चलो झंडा उठाकर जी। हैं, आप उनके स्वागत करो। हाँ, शोभा यात्रा का स्वागत होना चाहिए। अपनी दुकान के बाहर निकल कर फूलों की बारिश करो उनके ऊपर, आप उनको जल पिलाओ, आपकी जो सामर्थ्य है वो करो। लेकिन यात्रा एक दिन ऐसी निकालो, ना बाइक ना ट्राली, कुछ भी नहीं, पैदल। तब लगेगा पता कि सनातन के साथ कितने हैं। ट्रालियों पर तो हर कोई बैठ जाएगा सामान इकट्ठा करने के लिए। तो मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि ट्रालियां ना करें, समाज के अनुसार जैसी व्यवस्था है वे करें, लेकिन एक बार देखो करके सनातन के साथ कितने आदमी है, तब पता लगेगा हमें किस घर से कितने आदमी है। न्योता क्यों देना? 6 महीने पहले शुरू हो जाओ। आजकल सोशल मीडिया पर डालो कि भाई हाँ जी इस दिन झंडा यात्रा है। इस दिन क्या सबको पता है नववर्ष कब है, हिंदू नववर्ष कब है? किसको नहीं पता? सबको पता है। अब तो सोशल मीडिया के जरिए सबको पता है।
तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए एक बार तो सनातन धर्म क्यों नहीं बढ़ेगा आगे। कथाओं का प्रसार प्रचार तो हो रहा है ज़्यादा, लेकिन फिर भी इतने दंगे हो रहे हैं, फिर भी इतनी सारी चीज़ें घट रही हैं। ऐसा क्यों? जानकारी नहीं है हमारे तक पूरी। हम जब सब मिलकर एक हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि पहले शुरू से ही संग्राम हुए, ये तो आपको भी पता है। सतयुग में महासंग्राम हुआ है, देवता राक्षस लड़ पड़े हैं, एक ही उसके पिता एक ही हैं, दिति अदिति, दिति से राक्षस और अदिति से देवता, पर लड़ रहे हैं। महासंग्राम हो गया, समुद्र मंथन हो गया है जी। पर चलो वो भी एक प्रक्रिया थी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन देखो संग्राम तो हुए ना, लड़ाइयाँ हर जगह हुई जी। त्रेता में हुई जी। त्रेता में दो देशों के बीच हो गई, लंका और अयोध्या। द्वापर में भी युद्ध हुआ, वो परिवार में ही हो गया, पांडवों और कौरवों के बीच, उनमें भी युद्ध हुआ। अब कलयुग में नहीं होगा युद्ध, हो तो रहा है। लोग अपने साथ ही युद्ध कर रहे हैं, खुद के साथ। पहले हर चीज के लिए धर्म था भाई जी, हर चीज के लिए धर्म था। युद्ध हुए, शंख बज गया तो युद्ध समाप्त, शंख बज गया तो युद्ध समाप्त, सूर्यास्त हो गया तो युद्ध समाप्त। फिर पीठ के पीछे भी कोई वार नहीं करता था, ये परंपरा थी, धर्म था। लड़ते लड़ते किसी की तलवार छूट गई तो अगला बोलता था भाई उठा, फिर लड़ आजा। ईर्ष्या नहीं थी। आज पहले धर्म में भी, युद्ध में भी क्या था? धर्म। युद्ध में भी धर्म था। अब धर्म में भी क्या हो रहा है? युद्ध। अगले ने शोभा यात्रा बड़ी निकाली तो अगला बोलता अगली बार मैं इससे भी बड़ी निकालूंगा। तो वो क्या करता है? मतलब ये शोभा यात्रा की बात नहीं है, बड़ी सारी ऐसी चीजें। इसने मंदिर बनाया तो मैं भी अब अलग बनाऊंगा। वो अलग के चक्कर में क्या है? अपना ही नुकसान, धर्म का नुकसान। आपके बच्चे भूखे मरेंगे, आपके नहीं भाई, मेरे भी जी। मेरे बच्चों तक जिस तरीके से ये समाज चला है, मेरे बच्चे तो भूखे मरने वाले हैं। मेरे बच्चों के पास क्या है? आप बताओ, आपके घर में तलवार है? आपके घर में अर्घ ही मिलेगा, सूर्य को अर्घ देने वाला। बाकी के घर जाओ, बंदूक भी रखी है, तलवार भी रखी है। हमने क्या रखा है? तो हम ऐसे बनाएंगे अपने बच्चों को? मैं युद्ध की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझो इस बात को। हमारे पास कुछ नहीं है भाई जी, और आने वाले समय में हम भीख मांगने वाले होने हैं। कम संख्या वाले ज्यादा हो रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये करो वो करो। अपने सनातन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अपने सनातन के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे हम एक हो ही नहीं रहे। हम कब हुए एक? अभी बोल दो हम सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएंगे, कौन होगा इकट्ठा भाई जी? कोई नहीं होगा। अगला बोलेगा नवरात्रे लगे, सीजन लगाए जी, हमारा सीजन लगाए। अब मेरा भी सीजन नहीं है भाई, मैंने भी बच्चों की फीस देनी है, कमरे का किराया देना है। मेरी सैलरी कौन सी 50-70 हज़ार रुपये है। मैं भी मंदिर का पुजारी हूँ, महामाई की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा हो रही है, ठीक है। तो हम तो दौड़ेंगे भाई, हमें तो दौड़ना पड़ेगा। लेकिन सनातन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज ही बता सकता है अपने यजमान को, ठीक है। लेकिन यहाँ भी युद्ध ही हो रहे हैं धर्म में, तो फिर क्या फ़ायदा? तो इससे हम क्या हो जाते हैं, कई बार हमें भी बड़ा दुख लगता है, हमें भी लोग बड़ा कुछ बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई मेरा परिवार नहीं है मैं कमाने ना जाऊँ, मुझे भी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सनातन के लिए जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सनातन धर्म के लिए कुछ करने के लिए पहले हमें अपने अंदर पता होना चाहिए। किसी एक झंडे उठाने वाले को पूछ लो आप कि भाई साहब आपको पता है आज से 9वां साल है, किसी को पता होगा ना तो वो झंडा कभी छोड़ेगा ही नहीं, जब पता लग जाएगा उसको अपने धर्म के बारे में। तो हमें अपने धर्म के बारे में जानना पड़ेगा। संस्कृत आजकल आती किसको है? किसी को नहीं आ रही है। स्कूल ऐसे पढ़ा रहे हैं लोग, जहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। और वही जो सरकारी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने वाले को पूछो कि आप कहाँ पढ़े हैं, सच बोल रहा हूँ, पूछना उनको कभी। एक भी टीचर बता दे उनमें कि मैं अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा हूँ, सब सरकारी वाले हैं। लेकिन आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी बना रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अनिरुद्धाचार्य जी को 5-7 वृद्धाश्रम और बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। और मैं नहीं चाहता कि वृद्धाश्रम बने हमारे भारत में, तो होना ही नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए।
वज्रनाभ जी ने जिस पर कंस ने बच्चे मार दिए थे, उस पत्थर को भी मूर्ति के रूप में प्रदर्शित कर दिया। 3 मूर्तियां बना दी, जो जयपुर में है, करौली में है, 2 तो जयपुर में है, राजस्थान में, गोपीनाथ गोविंद देव जी। तो ये इस प्रकार उन्होंने भी देखो उस पत्थर को, कि ये मनहूस पत्थर है, उस पत्थर को क्या कर दिया, मूर्तियों में तब्दील कर दिया वज्रनाभ जी ने। कृष्ण जी बना दिए उन्होंने, हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बुरी चीजों को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। वो उन्होंने बुरी चीजों को ही अच्छे में परिवर्तित कर दिया है। तो उसी पत्थर के आज गोपीनाथ जी आप दर्शन करो, गोविंद देव जी दर्शन करो, क्या बोलते हैं जी, सही है ना। तो उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया हमारे लिए, पर हम क्या कर रहे हैं भाई जी, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर चलो सोशल मीडिया है तो इसके जरिए कोई 2 तो सुन लें, 2 तो सुनेंगे, वही है। जब 2 सुन लेंगे तो और भी सुनाएंगे अपने खास 2 को, तो चेन तो ऐसे ही बनेगी। एकदम तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी बड़ी जो संगठन बने हैं उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। संगठन का जो मुखिया है पहले उसको सनातन के बारे में पता हो, ठीक है जी। आज सारे दल बने हुए हैं, उस दल का बजरंग दल है, कौन सा दल है, कौन सा दल, हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी का दल बनाने वाला है, उसको सुंदरकांड सारा आना चाहिए पढ़ना। जिस मंदिर का जो भी कार्य करता है, शिव का मंदिर है तो शिव के बारे में पूरी जानकारी हो, ठीक है जी। ये नहीं भाई वोट जिसको ज्यादा पड़े वो मुखिया बन गया, नहीं, जिसको शिव के बारे में ज्यादा जानकारी है वही शिव मंदिर का मुखिया हो, माता के बारे में जानकारी है वही माँ का भक्त हो, अन्यथा माँ का वहाँ मुखिया हो, उस कार्य को चलाने वाला। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास ऐसा है, जिसके पास सब कुछ है, वही अपना रुतबा दिखाता है, उसको प्रधान बना देता है, वही मतलब आगे बढ़ गया। मुझे ईर्ष्या नहीं है किसी से कि ये प्रधान है, वो प्रधान है, वो हैं, सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको भी उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उनको भी वहाँ के जो महामाई के पुजारी हैं या गुण हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या बोलेंगे, आज के दिन क्या करना है, कल के दिन क्या निकालने के लिए। तो हम में 100 गलतियाँ निकाल दो। लोग हमें भी नहीं कहते हैं कि मंदिर में तो आप पुजारी हैं लेकिन दिखते तो है नहीं, है ना। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस ठाकुर ने हमारी सेवा आज अंब में लगा दी। किसने लगाई? उसी ने लगाई जिसकी सेवा करते हैं। उसी ने बोला कि जाओ भाई उधर भी बता लोगों को कुछ है, थोड़ा अपना पालन पोषण भी कर और वहां जाकर बता भी। तो मैं तो ये सोचता हूँ, है मुझे तो नहीं पड़ती सच में। हमारा अब ठाकुर जी को, मुझे आप किसी भी देवता को दिखा दो, पर मुझे वो देवता ही नहीं दिखता, मुझे तो वही दिखते हैं जिनका मैं सेवादार हूँ। मैं माता को दिखा दो मेरे को, तो मैं कामाख्या देवी जा रहा हूँ, पर दर्शन वही होंगे मुझे। ये या मेरे कौन मानेगा, लेकिन मुझे पता है ना, मैं उनको तो मेरे से अलग है ही नहीं कभी। वो कैसे अलग है? जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो अलग है मेरे से। आप बताओ मेरे को। नहीं हो सकता है। जब से वो स्थापित हुए हैं, मेरे सेवा लगी है वहाँ से, आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि भगवान सच में क्या नहीं करते हमारे लिए, और करते हैं, वो करते रहेंगे, मुझे इतना विश्वास है। मैं जहाँ मर्जी रहूँ, ठीक है जी, मैं जहाँ मर्जी रहूँ। अभी हिमाचल में थे, आप साथ ही थे, 7-8 दिन हम वहाँ रहे, लेकिन 1 मिनट भी वो अलग नहीं थे, साथ में। हमने तो हर जगह उनको देखा। मुझे तो दिखते ही वही है, राम जी को दिखाओ, हनुमान जी को दिखाओ, मुझे वही दिखते हैं, ये तो है पक्का। अभी माता के दर्शन करूँगा माता के, पर दर्शन मुझे वही होंगे, तो मेरे लिए तो अलग है नहीं। तो बस आपको लास्ट बात यही बताने जा रहा हूँ कि सनातन धर्म जो है इसके साथ जुड़ो और सच में उस चीज़ को जानो, है ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, 4 बातें लग पड़ा करने। मैं ज्ञानी थोड़ी हूँ, मैं मूर्ख आदमी हूँ। लेकिन जब हम एक साथ बैठेंगे ना, क्या बात करेंगे? सनातन की बात करेंगे। जो चीज़ नहीं पता लगेगी उस चीज़ की खोज करेंगे। क्या बोलते हैं? संतों के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, अनुभवी के पास जाएंगे, क्या कहते हैं आप, सबके पास जाएंगे, बात करेंगे। हल तो करके ही निकलेगा ना, हल तो ऐसा निकलने वाला है नहीं। मैं बोलूंगा कि मेरे से बड़ा अब कोई नहीं है, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, फिर मैं 4 दिन नहीं हूँ, बस यही है, फिर मैं मरने वाला हूँ, समझ लो। वो परमहंस जी के बारे में सुना ना, काली जी के भक्त थे, तो एक एक चीज जो है बताते थे पत्नी को कि नमक नहीं है, ये नहीं है, तो
पत्नी को कह रहे थे कि जिस दिन ये स्वाद मेरा छूट जाएगा समझना मैं भी जाने वाला हूँ। तो पत्नी ने एक दिन नमक भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, तब भी वो खा गए। तो पत्नी ने जब देखा कि आज तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि बस मैंने बोला था ना। तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद भी वो चले गए। साक्षात काली माँ से बात करने वाले थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें सनातन धर्म समझने के लिए पहले खुद को न्योछावर होना पड़ेगा। लोगों का छोड़ो, पहले खुद तो चलो। हम कितने चल रहे हैं? हम कथा सुनाने कब जाते हैं? जब भीड़ हो जाती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अब मुझे यही समझ नहीं आता। जाओ देख के आओ भाई, भीड़ हुई कि नहीं हुई। तब ये क्या हुआ भाई? कथा तो ठाकुरों की हो रही है, ठाकुर जी नहीं बैठे हैं सुनने हैं। काल भी, समय भी तो, काल भी तो वही है। भगवान कह रहे हैं मैं काल हूं। काल क्या, समय भी तो भगवान है। समय की मर्यादा रखो भाई। 2 बजे कथा प्रारंभ, 2 बजे बैठ जाओ। ये हम में भी कमियां हैं। हम देखते हैं चलो 10 मिनट रुक जाओ, कोई नहीं आया है। ये क्या बात हुई भाई? कोई नहीं आया, हमने कोई से क्या लेना? जो आएगा अपने लिए आएगा, मेरे लिए थोड़ी आएगा। इसलिए इन चीज़ों को बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। सीखा नहीं हूँ मैं, सीखूंगा अभी आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो ये ही चीज़ें हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर ऐसे हम करेंगे, पहले तो मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने परिवार को सनातनी बनाऊंगा। सनातनी तो हूँ भाई, ब्राह्मण परिवार में कश्यप गोत्र से उत्पन्न हुआ हूँ, हाँ जी। तो सनातनी तो हूँ, पर पता नहीं कितने % हूँ। पर पहला प्रण मेरा ये कि मेरा परिवार, मेरे दोनों बेटे, मेरी धर्मपत्नी सनातनी बने। पहले वो सनातन को जाने। हम 4 लोग जब बन जाएंगे तो पक्का हम चारों जने, चारों को 4 और खींच लेंगे, 8 हो जाएंगे। फिर आपको भी हम साथ ले चलेंगे, आपका परिवार हो जाएगा भाई। एक दिन ऐसा आएगा 140 करोड़ की जो संख्या, जनसंख्या है, वो सारी हो जाएगी सनातनी। फिर क्या होगा? कोई दंगा ही नहीं होगा। अब क्या चला हुआ है? वोट लेने वाले लड़ा रहे हैं हमें धर्म के नाम पर। सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्म के नाम पर। हिमाचल में अभी झंडों की बात चल पड़ी थी, हैं कि पंजाब में हिमाचली ना है, ऐसे ना है। मैं तो पागल हो गया भाई। मैं तो पंजाब में ही काम करता हूँ, मैं तो भूखा मरने वाला हूँ। मैंने तो कुछ दिन पहले सोच लिया, मैं तो परिवार को बोल दिया कि अब हम भूखे मरने वाले हैं भाई। बोला क्यों? मैं क्या, पंजाब वाले निकाल देंगे हमें? हम तो हिमाचल से हैं, हम क्या करेंगे वहाँ? मजदूरी मेरे से होगी नहीं। पर परिवार तो धर्म के नाम पर कौन लड़ा रहे हैं हमें? मुझे ये समझ नहीं आ रही। यही चीजें हैं समझने वाली, है ना। कोई बात आगे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो समझने वाला समझ गया है जो, वो ठीक है। तो लेकिन पहला प्रण मेरा ये है, पहले नवरात्रे से, कि 9 दिनों में मैं अपने परिवार को सनातनी बनाऊं तो मैं सक्सेस हूँ। अपना परिवार देखो, पहले सनातनी बनाओ। फिर जिस दिन निकलो तो 4 झंडा लेके निकलो। 4 झंडे निकलेंगे जब, तो पता नहीं कब 8 हो जाएंगे, कब 12 हो जाएंगे, कब 16 हो जाएंगे। और फिर गिनती भी नहीं गिननी आएगी हमें। ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो मैं इस वीडियो को आप बिल्कुल संभाल के रखना भाई। अगले नवरात्रों में हम अपने पीछे भी दिखाएंगे कि हमारे साथ कितने। आज हम 2 हैं। हाँ। आज 2 हैं। उस दिन हमारा परिवार भी हो, और हमारा परिवार और जो हमारे साथ है उनका परिवार। ये नहीं भाई 4 जने आए, फोटो खिंचाई और चल पड़े, नहीं। ये वीडियो आप प्लीज संभाल के रखना। उस दिन हम जरूर 1 साल के बाद इन नवरात्रों में, जो नेक्स्ट अब नवरात्र आएंगे महामाई के, उनमें भी हम क्या करेंगे, अपना एक झंडा यात्रा निकालेंगे, जिसमें बेशक हम 2 हों, पर हम निकालेंगे जरूर सनातन के लिए। तो इसलिए बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय माता दी। ये जो वीडियो आज ही अपलोड होगी मेरे YouTube चैनल पे, और आज से अगले साल तक हम अपना साथ आगे से आगे कदम मिलाते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे। राधे राधे, जय सिया राम।